یہ آسمان بالکل پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر اچانک ہٹ پڑتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں خشک زمین ایک طوفانی سمندر میں بدل جاتی ہے، جو سڑکوں، گھروں اور پوری بستیوں کو نگل لیتا ہے۔ یہ عام سیلاب نہیں ہوتے، یہ فلیش فلڈز ہیں۔ کبھی یہ نایاب سمجھے جاتے تھے، مگر اب یہ بھارت، پاکستان اور پورے ایشیا میں بے قابو لہروں کی طرح پھیل رہے ہیں، جنہیں پگھلتے گلیشیئرز اور تپتی ہوئی فضا مزید طاقت دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے انہیں ایک نیا عالمی خطرہ قرار دیا ہے، اور آج دنیا کے سامنے سوال کھڑا ہے، اگر یہ صرف شروعات ہے تو انسان کتنی دیر تک اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ عام دریائی سیلاب دنوں میں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اور اکثر ان کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فلیش فلڈز بالکل مختلف ہیں۔ یہ بغیر کسی وارننگ کے اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شدید بارش کے چند منٹوں یا گھنٹوں میں پانی خطرناک رفتار سے بڑھتا ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے واپس بھی اتر جاتا ہے۔ یورپین جیو سائنسز یونین کے مطابق 2024 میں روایتی فلڈ ماڈلز اکثر ان کی درست پیش گوئی نہیں کر پائے، کیونکہ ان کا آغاز اتنا تیز ہوتا ہے کہ ماڈلز اسے گرفت میں نہیں لے سکتے۔ آخر سوال یہ ہے کہ یہ خطرناک فلڈز شروع کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں قدرت کا اپنا بڑا کردار ہے۔ بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں گریوٹی پانی کو تیزی سے نیچے کی طرف دھکیلتی ہے، جس سے چھوٹے ندی نالے اچانک طوفانی ٹورنٹس میں بدل جاتے ہیں۔ جہاں زمین سخت اور کم جاذب مٹی پر مشتمل ہو، وہاں بارش زمین میں جذب ہونے کی بجائے سطح پر کی انسٹاپیبل شیٹس کی شکل میں بہنے لگتی ہے، اور جب چند ہی گھنٹوں میں طوفانی بارش بے پناہ پانی گرا دیتی ہے تو قدرتی ڈرینیج سسٹم فوراً ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوپرنیکس پبلیکیشن 2024 کی ایک تحقیق کے مطابق چیک ریپبلک کے پہاڑی علاقے، جہاں یہ سخت اور کم جاذب مٹی پائی جاتی ہے، بار بار فلیش فلڈز کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جیوگرافی اور سوائل کنڈیشنز مل کر اس خطرے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنی ہی چنی ہوئی راہوں سے بارش کو تباہی میں بدل رہے ہیں؟ اس کہانی میں انسان بھی معصوم تماشائی نہیں ہے۔ تیز رفتار اربنائزیشن دلدلی زمینوں، جنگلات اور کھلی مٹی کو بدل کر کنکریٹ، گراس اور ایسفالٹ سے ڈھک دیتی ہے۔ یہ سخت سطح پانی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیدھا سڑکوں، بیسمنٹس اور سب وے سسٹمز میں امٹ آتا ہے۔ دوسری طرف ڈی فارسٹیشن پہاڑی ڈھلوانوں سے ان درختوں کو چھین لیتی ہے جو بارش کو جذب کرتے اور مٹی کو سہارا دیتے تھے۔ اس قدرتی سپونج کے بغیر زمین بارش کے طوفان کو روکنے کے قابل نہیں رہتی۔ IWA کی ایک تحقیق کے مطابق جو اردن کے عمان زرق بیسن پر کی گئی، اس نے واضح کیا کہ کس طرح شہری توسیع اور سبزے کے خاتمے نے سیلاب کے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی ہماری سٹیز سب سے خطرناک فلڈ زونز کیوں بن رہی ہیں؟ بہت سی سٹیز اس تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر ساتھ ہی نہیں دے پاتا۔ پرانے ڈرینیج سسٹمز یا تو ناکافی ہیں یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ جب تیز بارش ہوتی ہے تو بند نالیاں اور رکے ہوئے ڈرینز سڑکوں کو دریاؤں میں بدل دیتے ہیں۔ MTPI 2023 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق نے سعودی عرب کے جدہ شہر کا جائزہ لیا اور بتایا کہ کس طرح بغیر منصوبہ بندی کے پھیلاؤ اور مناسب ڈرینیج انفراسٹرکچر کی غیر موجودگی نے عام بارش کو بھی مہلک فلیش فلڈز میں تبدیل کر دیا۔ کیا ایک ہی فلڈ زمین کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟ فلیش فلڈز کی تباہی صرف فوری نقصان تک محدود نہیں رہتی۔ دریا کے کنارے کٹ جاتے ہیں، نئی نہریں اور راستے بن جاتے ہیں، اور بھاری مقدار میں سیڈیمنٹ اور ڈیبریز وادیوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں اکثر قدرتی دریاؤں کے بہاؤ کو روک دیتی ہیں یا موڑ دیتی ہیں۔
जिसके बायस मुस्तकबिल में मज़ीद बड़े सैलाबों का ख़तरा बढ़ जाता है। कोपर्निकस पब्लिकेशन 2024 की एक तहकीक ने तस्दीक की कि सैलाब लाने वाले तूफ़ान ज़मीन की हाइड्रोलॉजी को मुस्तकिल तौर पर बदल देते हैं और यूं ये एक के बाद दूसरा सानहा जन्म लेता है। दुनिया भर में कुछ खित्ते दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। फ्लैश फ्लड्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बन जाते हैं। साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट बार बार इनके शदीद असरात का शिकार बनते हैं। मगर इस मायूस कुन हकीकत के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इन नाकाबिले पेशगोई सैलाबों की पेशगोई में नई राहें खोल रही है। रियल टाइम IoT सेंसर, सैटेलाइट बेस्ड रेनफॉल मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स अब वार्निंग सिस्टम को एक नई शक्ल दे रहे हैं। फिर भी कोई भी टेक्नोलॉजी इंसानी कीमत को ख़त्म नहीं कर सकती। हर साल फ्लैश फ्लड्स हज़ारों जानें ले लेते हैं और लाखों लोगों को बेघर कर देते हैं। तबाही सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर 2025 में साउथ एशिया में नजर आई। ये कहानी हर साल एक ही तरह शुरू होती है। उत्तराखंड इंडिया में जब 5 अगस्त 2025 को बादल फटे तो इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट बेस्ड क्लाउड बर्स्ट वार्निंग्स 2 घंटे पहले जारी कर दी। सायरन बजने लगे, अलर्ट्स लाखों लोगों के फोन्स पर रिसीव हुए और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें पहले ही पहाड़ों की तरफ जाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि पहला लैंडस्लाइड भी नहीं आया था। इब्तदाई वार्निंग्स ने कम्युनिटीज़ को क्रूशल वक्त दिया कि वो इवैक्यूएट कर सके। इसके बावजूद तबाही ने भारी नुकसान छोड़ा। धारेल और आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और मड स्लाइड्स ने कई घरों और होटल्स को तबाह कर दिया। 70 से ज़्यादा अफराद हलाक होने का शुबा है, जिनमें 11 फौजी शामिल हैं और डून वैली, देहरादून के इस्ला में 18 हलाकतों की तस्दीक हुई। तकरीबन 3000 सयाह फंस गए, जबकि सड़कें, पुल और बाजार बह गए और मुसलसल बारिश और मुश्किल पहाड़ी रास्तों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस को चैलेंजेस का सामना रहा। बॉर्डर की दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में वही तूफान तकरीबन बगैर किसी मौसर वार्निंग के आया। गांव वाले पुरसुकून आसमान के नीचे सोए और अचानक रेजिंग फ्लड वाटर्स में जागे। एक रात में 200 से ज़्यादा लोग बह गए और कई इलाके दरिया और नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से कट गए। अगरचे पाकिस्तान मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जनरल रेन अलर्ट जारी किया था, मुकामी कम्युनिकेशन सिस्टम्स नाकाम रहे और रिहायशियों तक एक्शनेबल वार्निंग्स नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से उन्हें इवैक्यूएट या अपने घरों की हिफाजत के लिए वक्त ना मिल सका। सड़कें और पुल बहा दिए गए और इमरजेंसी रिस्पांस तेज़ी से बढ़ते पानी और मुश्किल रास्तों की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। हमारे शहरों के नीचे पाइप और नक्कासी आब का निज़ाम एक सवाल पूछता है, क्या ये कुदरत की अचानक शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है? दिल्ली और मुंबई इंडिया में सैलाब के खिलाफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन फ्लड बाईपास चैनल्स, स्टॉर्म ड्रेन्स और स्लोप रिटेनिंग वॉल्स ऐसे मंसूबों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो शदीद हालात में पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। कराची और लाहौर में पाकिस्तान में शहरी ड्रेन्स अक्सर बंद, टूटे हुए या बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। बहुत से ड्रेन्स नौआबादियाती दौर में बनाए गए थे और कुछ एम्बैंकमेंट्स जो 2010 के सैलाब में तबाह हुए थे अभी तक दोबारा तामीर नहीं हुए। अगरचे पाकिस्तान की नदियों में पानी का हुजम इंडिया से ज़्यादा है, इसके शहर शदीद बारिश के मुख्तसर इवेंट्स को भी संभालने में मुश्किल महसूस करते हैं। भारत में कवानीन बतदरीज तरक्की कर रहे हैं। 2025 में मरकज़ ने फ्लड प्लेन जोनिंग पर टेक्निकल गाइडलाइंस जारी की।
जिन्होंने फ्लड प्लेन्स को 3 जोन्स में तकसीम किया, यानी प्रोटेक्टेड, रेगुलेटरी एंड वार्निंग। इन जोन्स में तामीरात के लिए सख्त उसूल मुतय्यन किए गए और डेवलपर्स के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो रेन वाटर ड्रेनेज प्लान्स भी शामिल करें। ये इक़दामात फ्लैश फ्लड्स के ख़तरे को कम करते हैं और प्रिवेंटिव सेफ्टी को बढ़ाते हैं। लेकिन इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और NDRF की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कवानीन पर अमल दरामद हर जगह यकसा नहीं होता। पुराने फ्लड प्लेन्स पर मौजूद बस्तियां अब भी खतरे में है। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या शहरी तरक्की उन दरियाओं का एहतराम करती है जिनके किनारे वो आबाद होती है? कुछ खित्ते सैलाब से मुतासरा जोन्स को एहतियात से नक्शाबंद करते हैं, जबकि कुछ बराह रास्त दरिया के किनारे या उसके पेट में बस्तियां बसा लेते हैं। ये अमल सैलाब के असरात को किस तरह बदल देता है? पाकिस्तान में कई कस्बे और शहर दरिया के पेट पर ही फैल गए हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, चनियोट, हाफसाबाद जैसे इलाके इसलिए ज़्यादा ख़तरे में हैं क्योंकि तजावुज़ात ने दरियाओं के कुदरती रास्ते को रोक दिया है। 2025 के पंजाब के सैलाब के दौरान NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाओं में तुग़यानी और डैम से पानी छोड़ने के अमल ने एनक्रोच्ड फ्लड प्लेन्स को डबो दिया, जिसके नतीजे में 1400 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। अलबत्ता पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात भी शुरू किए हैं। NDMA और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिवर बैंक रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स और मुकामी सतह पर ड्रेनेज की बेहतरी पर काम जारी है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर इक़दामात रिएक्टिव हैं, ना कि प्रिवेंटिव। यही वो फ़र्क है जो दोनों ममालिक की अप्रोचेस को नुमाया करता है। जब पानी वापस जाता है तो क्या होता है? कौन जल्दी दोबारा खड़ा हो सकता है और कौन मामूल पर आने में जद्दोजहद करता है? हकीकत यह है कि तूफ़ान के बाद का मरहला भी उतना ही कठिन होता है जितना कि डिज़ास्टर खुद। भारत में बहाली निस्बतन मुनज़्ज़म तरीके से होती है। डिज़ास्टर रिलीफ फंड, फसल बीमा स्कीमों और रियासती सतह की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कम्युनिटीज़ को तेज़ी से सहारा देते हैं। आसाम 2025 के सैलाब में NDMA और रियासती हुकूमतों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा ख़ानदानों तक फसलों के नुकसान का मुआवजा और पनाहगाहों में सहूलत चंद हफ्तों में पहुंचा दिया गया। गांव और कस्बे पानी तले दब जाते हैं, मगर मौजूदा निज़ाम इन्हें दोबारा उठने में मदद देता है। अलबत्ता चैलेंजेस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर हिमालय के दूर दराज इलाकों में, जहां सड़कें और पुल दोबारा तामीर करने में महीनों लग जाते हैं। ये नुक्ता वर्ल्ड बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स में भी नुमाया किया गया। पाकिस्तान में बहाली ज़्यादातर बैनुल अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार करती है। 2022 के सैलाब के बाद UNDP और वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट्स में बताया गया कि लाखों लोग एक साल बाद भी बेघर थे और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर रहा था। 2025 पंजाब के सैलाब में जब 1400 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए, बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेशन के लिए दोबारा आलमी डोनर्स और NGOs पर इन्हिसार करना पड़ा। ताहम NDMA की 2025 की रिपोर्ट्स और सूबाई रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात उठाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की बहाली, डैम मेंटेनेंस की बेहतरी और फ्लड अवेयरनेस कैंपेन्स मुकामी सतह पर रेसिलियंस बढ़ा रही हैं। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। इब्तदाई वार्निंग तभी कारआमद है जब वो आखिरी गांव तक वक्त पर पहुंच सके, जैसा कि UNDRR और NDMA बताते हैं। ड्रेन्स और बंद जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मददगार तो हैं, लेकिन सिर्फ तब जब इनकी देखभाल हो, जैसा कि वर्ल्ड बैंक कहता है, और कुदरती हल जंगलात, वेटलैंड्स और दरिया के किनारों की बहाली है। पानी के बहाव को सुस्त कर सकते हैं। ये दोनों ममालिक सीख रहे हैं। साइंस वाज़ेह है, तूफ़ान बदल रहे हैं और ख़तरात बढ़ रहे हैं।
اگر یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔